सभी बच्चों को सप्रेम नमस्कार। मैं ए.टी. कृष्णा, सरकारी बॉयज़ जूनियर कॉलेज अरकलगूडू से। बच्चों, आज हम भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित मातृभूमि इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले अब हम कविता वाचन करेंगे। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। अब हम कवि परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। श्री भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। ಭಗವತಿ ಚರಣ ವರ್ಮಾ ಅವರು 30 ಆಗಸ್ಟ್ 1903ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಫೀಪುರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವರು ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ BA ಮತ್ತು LLB डिग्रियाँ पढ़िದ್ದಾರೆ। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। ಇವರು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನವಜೀವನ ಎನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೇಲೆ 2 ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾದಂಬರಿ ಭೂಲೆ ಬಿಸ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ಯುವರಾಜ್ ಚೂಂಡ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳು। ಮೇರಿ ಕಹಾನಿಯಾ, ಮೂರ್ಛಾಬಂದಿ ತಥಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಹಾನಿಯಾ ಇದು ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಕಥೆಗಳು, ಕಥಾ ಸಂಕಲನ। मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता कविता संग्रह ಇದು ಅವರ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನ। मेरे नाटक वसीयत ಇವೆರಡು ನಾಟಕಗಳು। आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियाँ हैं। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। 1981ರಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿಧನವಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ। अब कुछ शब्दार्थ जानेंगे। शाहिद, अमर, हस्त, सुहाने, धाम, गूंजना। शाहिद यानी सोया हुआ, अमर मृत्युहीन अथवा जो कभी नहीं मरता, हस्त हाथ, सुहाने सुंदर, धाम यानी घर, गूंजना प्रतिध्वनित होना। अब कविता का आशय देखेंगे। भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ।
प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ನೋಟ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, ಅವರು ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಅಪಾರವಾದಂಥ ವನ ಸಂಪತ್ತು, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿ का वर्णन करते हुए ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿयों का ಸ್ಮರಣ करते हैं. ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है. ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮಹಾನತೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मातृभूमि भगवती चरण वर्मा ಅವ್ರದ್ದು. इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಕವಿತೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತೃಭೂ ಶತಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹೇ ಮಾತೃಭೂ, ಮಾತೃಭೂ ಅಂದರೆ ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆಯೇ ನಿನಗೆ ಶತಶತ ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ, ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ ಅಂದರೆ ಅಮರರನ್ನು ಹೆತ್ತವಳೆ. ಅಮರರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಂದೂ ಸಾವಿಲ್ಲದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅಂಥವರನ್ನು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ನೀನು. ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ ತುಮಕೋ ಶತಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್, ನಿನಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮಾತೃಭೂ ಶತಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ತೇರೆ ಉರ್ಮೆ ಶಾಯಿತ್, ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಅವ್ರ ರಾಮ್. ಶಾಯಿತ್ ಅಂದರೆ ಸೋಯೇ ಹುಯೇ ಹೇ ಅಂತ. ಮಾತೃಭೂ ಶತಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಓ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೇ ನಿನಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹರೇ ಭರೇ ಹೇ ಖೇತ್ ಸುಹಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಖೇತ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹರೇ ಭರೇ ಹೇ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖೇತಿದೆ. ಫಲ್ ಫೂಲೋನ್ಸೆ ಯುತುವನ್ ಉಪವನ್, ವನ ಉಪವನಗಳು, ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೇರೆ ಅಂದರ್ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೇ ಖನಿಜೋಂಕ ಕಿತನಾ ವ್ಯಾಪಕ ಧನ, ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಖನಿಜದ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಪತ್ತು, ಧನ. ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತತು ಬಾಂಟ ರಹಿ ಹೇ. ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ಅಂದ್ರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡ್ದಲೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಧನ್ ಧಾಮ್, ಧನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಧಾಮ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಮಾತೃಭೂ ಶತಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೇ ನಿನಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸೊ ಇದು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕ ಹಾತ್ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕೆ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನದೀಪ ದೂಸರೆ ಹಾತ್ ಮೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದೀಪವಿದೆ. ಜಗಕಾ ರೂಪ ಬದಲ್ದೆ ಹೇಮ, ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಬದಲಿಸು ಓ ಮಾತೆಯೇ. ಅಂದ್ರರ್ಥ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕೆ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿದೆ. ಹೇ ಮಾತೆಯೇ ನೀನು ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಮ್ ಆಜ್ ಸಾತ್ ಮೇ, ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಗೂಂಜ್ ಉಠೆ ಜಯ ಹಿಂದ್ ನಾದಸೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕವಿಗಳು ಇದೊಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗೂಂಜ್ ಉಠೆ ಜಯ ಹಿಂದ್ ನಾದಸೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬೇಕು. ಸಕಲ ನಗರ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಎಲ್ಲ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಯ ಹಿಂದ್ ನಾದ್, ಜಯ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾದ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತೃಭೂ ಶತಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಿನಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. अब कुछ याद रखने की बातें इस प्रकार है. भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को शफीपुर गांव में हुआ. विचार और नवजीवन इन पत्रिकाओं का संपादन किया. आपका उपन्यास चित्रलेखा पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है और एक उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है. अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूंडा, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी, संपूर्ण कहानियाँ, मेरी कविताएँ, सविनय, एक नाराज़ कविता, मेरे नाटक, वसीयत आदि आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं.
मृत्यु हुई 1981 में। यहाँ पर देश प्रेम की झलक हमें देखने को मिलता है। कवि मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, यहाँ के वन संपदा, खनिज संपदा आदि का वर्णन यहाँ पर किए हैं। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। अमरों की जननी कहते हैं। यहाँ पर शायित है गांधी, बुद्ध और राम। भारत माता के उर में गांधी, बुद्ध और राम सोए हुए हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन, खनिजों का कितना व्यापक धन भरा हुआ है। सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त बांट रही है। एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। जग के रूप बदलने के लिए ये दोनों सक्षम हैं। जय हिंद नाद सकल नगर और ग्राम में गूंज उठे। अब एक वाक्य में उत्तर लिखना। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथों में न्याय पताका और ज्ञानदीप है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी हैं। सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद नाद गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का खान भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त बांट रही है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन करते हैं। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर बच्चों। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत के खेत हरे भरे हैं, वन उपवन फल फूलों से भरा हुआ है। धरती के अंदर खनिजों का खान पड़ा हुआ है। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। ये भारत माता का स्वरूप है। अनुरूप शब्द देखेंगे। वसीयत नाटक तो चित्रलेखा उपन्यास। शत शत द्विरुक्ति हरे भरे शब्द युग्म। बाएं हाथ में न्याय पताका है तो दाहिने हाथ में ज्ञानदीप। हस्त हाथ, पताका झंडा। जोड़कर लिखना। तेरे उर में शायद फल फूलों से युत, एक हाथ में कोटि कोटि हम मातृभू। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। फल फूलों से युतवन उपवन, एक हाथ में न्याय पताका। कोटि कोटि हम आज साथ में, मातृभू शत शत बार प्रणाम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम करते हैं? शत शत बार। भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम डैश हैं, शायित हैं। वन उपवन डैश से युक्त हैं, फल फूलों से। डैश से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है, मुक्त हस्त। सभी ओर डैश का नाद गूंज उठे, जय हिंद। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। भावार्थ। इस कविता भाग को मातृभूमि कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। मातृभूमि के स्वरूप को बताते हुए कवि कहते हैं, भारत माता के एक हाथ में ज्ञानदीप और दूसरे हाथ में न्याय पताका है। ये दोनों संसार के रूप बदलने में सक्षम हैं। इसलिए कवि जग का रूप बदलने के लिए विनती करते हैं। वे चाहते हैं सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंज उठे।
विलोम शब्द आगमन निर्गमन, रात दिन, जवाब सवाल, बेचना खरीदना, सज्जन दुर्जन। अब कुछ अन्य वचन शब्द देखेंगे। कपड़ा कपड़े, चादर चादर, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज़ चीज़ें। पद्य भाग को पूर्ण करना। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। अब गृह कार्य। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? भारत के खेत कैसे हैं? 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? भावार्थ लिखिए। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। बच्चों, मातृभूमि कविता के लिए एक घटक परीक्षा का नमूना यहाँ पर दिया गया है। ऐसे 2-4 नमूना आप खुद तैयार कर लीजिए, जिससे परीक्षा में लिखने में आपको बहुत आसान होगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।